قادری تو کہہ رہے ہیں لیکن عبد القادر نے کیا کہا، ہم چشتی تو خود کو کہہ رہے ہیں لیکن ہم نہیں جان رہے کہ معین الدین چشتی نے کیا کہا، ہم خود کو صابری تو کہہ رہے ہیں نہیں جان رہے کہ صابر کلگری نے کیا کیا اور کیا کہا، ہم خود کو اشرفی تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں جانا کہ سلطان صغیر اشرف جہانگیر کیا کہا۔ دل گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے خدا کی محبت کے لیے۔ چور کو کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے اس چور کو روٹی کھلائی، فرمایا کہ بیٹا یہ ہاتھ اللہ کے لیے ہیں، یہ جہاں جس ہاتھ سے تم نے چوری کی ہے اس ہاتھ سے تم دعا مانگو تیری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ شخص پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کس کس کے سسکیاں لے کے مولانا روم کی گود میں رونے لگا، چلانے لگا۔ پھر اس نے کہا آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کبھی میں چوری بتا دے، جھوٹا بتا دے کہ مجھے اتنے کا نہیں اتنے کا پڑتا ہے، وہاں فائدہ ہو جائے گا۔ اب اس کا اندر نفس کہہ رہا ہے کہ فائدہ ہو جائے گا لیکن اس کا خیال ہے کہ نہیں، یہ دھوکہ دھڑی میرے رب کو پسند نہیں، اس لیے میں نہیں کروں گا۔ یہ ہو گیا آپ جہاں محبت کا نشہ سکھاتا۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس لیے آپ یہ نہ سوچیں ڈی موٹیویٹ نہ ہو کہ اب میں نے گناہ کر لیا ہے، میں گنہگار ہو گیا، میں کیسے سدھروں گا۔ گھبرائے نہ، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ والصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کی آل پر۔ عشق وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضرت میر خسرو فرماتے ہیں کہ خسرو دریا پریم کا الٹی ہوا کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عشق صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ وہ چیز ہے جب بندے کو عشق ہو جاتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، پھر اس کا عمل، اس کی فکر، اس کی سوچ، ہر چیز جس سے وہ عشق کرتا ہے اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ بندہ جب عشق کرتا ہے وہ دنیا بھول جاتا ہے۔ بندے کو سب سے عشق نہیں ہوتا لیکن جس سے ہو جاتا ہے اس کے لیے ہر چیز، ہر عمل اسی کے لیے ہو جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنوِ رومی فرماتے ہیں عشق بندے کو بیگانہ کر دیتا ہے، بندے کو خود سے غیر کر دیتا ہے، بندے کو اپنا نہیں لگتا، وہ خود سے غیر ہو جاتا ہے۔ اور اصلی عشق کسی نے کیا ہے تو صوفیاء کرام نے کیا ہے اپنے مالکی حقیقی سے۔ عشق وہ آگ ہے جب بندے کے دل میں وہ لگ جاتی ہے تو بندے کو خدا کے سوا ہر کوئی چیز بھی ہو وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ عشق صرف وہ چیز نہیں جو لفظوں سے ادا کر دی جائے، عشق وہ ایک روحانی ملن ہے کہ بندہ جب عشق کرتا ہے تو وہ اپنے مالک حقیقی کے قریب ہو جاتا ہے۔ عشق صرف ایک منزل کا نام نہیں بلکہ ایک سفر ہے جو بندے کے دل سے شروع ہوتا ہے اور اس کو عرش تک لے جاتا ہے۔ وہ چیز ہے کہ جب بندے کو اپنے رب سے عشق محبت ہو جاتی ہے تب اس کے لیے عبادت ایک مجبوری، ایک فرض نہیں بلکہ عبادت اس کے لیے ایک نشہ بن جاتی ہے۔ عبادت اس کی سب سے پسندیدہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عبادت مجبوری میں یا فرض سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے سمجھتا ہے۔ جب بندے کو عبادت کا موقع ملتا ہے بندہ کھل جاتا ہے۔ صوفیاء کرام نے عشق کیا تو اس وجہ سے نہ کیا، انہوں نے رب سے محبت کی تو عبادات جتنی بھی عبادت کی اس لیے یہ سوچ کے نہ کی یہ مجھ پہ فرض ہے، بلکہ انہوں نے یہ سوچ کے کی یہ عبادت، یہ نماز، یہ روزے، یہ جتنی بھی تلاوت قرآن، جتنی بھی عبادت ہے یہ مجھے اپنے رب سے قریب کر دیں گی۔ اس جذبے کے ساتھ انہوں نے عبادات کی، اس جذبے کے ساتھ انہوں نے رب کو اپنے قریب کیا، اب خود کو رب کے قریب کیا۔ انہوں نے اس جذبے کے ساتھ، ان کے لیے عبادات یہ کوئی بہت بڑی مصیبت یا کچھ مجبوریاں نہیں تھی کہ ارے ظہر کا وقت آ گیا ہے اب عبادت کرنی پڑے گی کیونکہ عبادت فرض ہے، عصر کی نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ عصر کی نماز فرض ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہوگی کیوں، مغرب کی نماز فرض ہے۔ اس وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہماری نماز میں وہ روحانیت وہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مجبوری سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن صوفیاء کرام مجبوری میں نہیں بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے ظہر کا، کہ اب میرے رب کے قریب ہونے کا وقت آ گیا ہے، عصر کا وقت آ گیا ہے، میرے رب کے قریب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جب مغرب کا وقت آتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرا رب سے قریب ہونے کا وقت آ گیا۔ جب عشاء کا وقت آتا ہے تو بندہ یہ نہیں سوچتا کہ عشاء ہے اب نیند آ رہی ہے کیسے نماز پڑھوں، مجبوری ہے، لیکن وہ عبادت اس سوچ سے کرتا ہے کہ میں سونے سے پہلے اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جب بندہ
इश्क उस नज़र से इबादत को देखता है, रब की कुर्बत के लिए इबादत को देखता है, रब से मोहब्बत के लिए इबादत को देखता है, तब जाके वो इश्क में तब्दील होता है। फिर बंदगी में भी एक नया रंग आता है, इबादत में एक नई खुशी मिलती है, एक नया रंग आता है। हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं, जब बंदे में के दिल में इश्क की बिजली गिर जाए तो बंदा खुद से बेगाना हो जाता है, बंदा खुद को भूल जाता है, खुद को भूल के रब की तरफ हो जाता है। सूफिया के नज़दीक इश्क खाली एक जज्बा नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल स्टेट है, एक वो हाल है जहाँ अक्ल का हिसाब खत्म हो जाता है, वहाँ से इश्क का सफ़र शुरू होता है, वहाँ से मोहब्बत का सफ़र शुरू होता है, जहाँ बंदा खुद को भूल जाता है और रब को पाने में लग जाता है, जहाँ पे बंदा हर दुनिया की हर जर्रे जर्रे में वो खुदा की कुदरत को तलाशता है, वो खुदा के जलवों को देखता है, वो स्टेट होता है। वो बंदा जब रब से मोहब्बत करता है तो उसको सिर्फ रब नजर आता है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, तज़किरतुल औलिया में इसका जिक्र है कि हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब मेरे और मेरे रब के बीच में मैं की दीवार थी तब तक मैं रब से जुदा था, और जिस दिन मैंने उस मैं की दीवार तोड़ दी मैं रब के करीब हो गया। तो ये मैं की दीवार बंदे को रब से दूर रखती है। हजरत मौलाना फरमाते हैं, हल्लह जब शक्ला बुते अय्यार बरामद बुर्दा नेहा शुद्ध सदकार बरामद। लम्हे में अल्लाह का एक नया जलवा नजर आता है और वो अल्लाह का नया जलवा दिल को ले जाता है। अब हम सूफिया कराम ने तो अपनी जिंदगी को रब के लिए फना कर दिया, अपने अमल को फना कर दिया, अपने अमाल को फना। हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद दुकान गए, अब दुकान पे ख्याल आ रहा है, दुकान पे कस्टमर आया कि इसको मैं 50 रुपए ज़्यादा बता दूंगा, ये दे देगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, 50 रुपए फ़ायदा हो जाएगा। अब उसका अंदर कह रहा है, अंदर जो उसका नफ्स है कह रहा है कि 50 रुपए बढ़ा के बता दे, झूठी रकम बता दे, झूठा बता दे कि मुझे इतने का नहीं इतने का पड़ता है, तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। अब उसका अंदर नफ्स कह रहा है कि फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसका ख्याल आया कि नहीं, ये धोखाधड़ी मेरे रब को पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं करूँगा। ये हो गया आपका सूफी कराम का रास्ता कि जहाँ उन्होंने अपने फ़ायदे को छोड़ के रब के बारे में सोचा। अब आप बैठे हुए दुकान पे, अजान हुई या सलाह या फलाह, जोहर का वक्त हो गया, आपने सोचा कि जोहर के वक्त बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती, बच्चे आके सामान खरीदते हैं, अगर मैं दुकान बंद करके चला जाऊंगा तो पता नहीं कितने बच्चे चले जाएंगे, मेरी दुकान का नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। अब नफ्स कह रहा है कि छोड़ दे नमाज, कज़ा कर लेना, अरे बाद में पढ़ देना, यहाँ तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। लेकिन फिर आता है कि नहीं, ये मेरे रब से मिलने का वक्त है, ये रब की इबादत का वक्त है। दुकान पे सामान कोई खरीदे ना खरीदे, दुकान से कस्टमर लौट जाएं, लेकिन ये मेरे रब की इबादत का वक्त है। ये रब से मोहब्बत हो गई, ये हो गई रब के लिए अपने अमल में रब को याद करना, अपनी डेली जिंदगियों में, हर अमल में। आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में आपका एग्जाम हुआ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने सोचा कि पास हो जाऊंगा, बगल वाले की शीट देख लेता हूँ, बगल वाले की आंसर स्क्रिप्ट देख लेता हूँ, या जो मैडम से झूठ बोल देता हूँ कि मैम मेरा कॉपी नहीं थी, मैम मैं घर में कुछ ये हो गया, इससे मैं बच जाऊंगा, या इससे मेरे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन आपको ख्याल आए कि नहीं, इस झूठ से मैं बच तो जाऊंगा, इस फ्रॉड से, इस चीटिंग से मेरे मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन मेरा रब खुश नहीं होगा। तरजीह दे दी अपने रब को कि मेरा रब खुश नहीं होगा, इसलिए भले ही मैं फेल हो जाऊं, भले ही टीचर मुझे कोई सज़ा दे दे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये हो गया रब से इश्क और रब को हमेशा प्रेफर करना। ये हो गया सूफियों का तरीका, जो सूफिया ने बताया है रब को करना। ये सिंपल हो गया। आप घर गए, घर के अंदर आपने एंट्री ली, देखा माँ बैठी है, तो आपने आने से पहले सोचा कि माँ के लिए कुछ फल ले लूँ, माँ के लिए कुछ सामान ले लूँ। अब आपने सोचा कि नहीं, अरे फालतू में पैसा नुकसान हो जाएगा, अम्मा कितना खा लेंगी, पैसा मेरा चला जाएगा। लेकिन आपने सोचा नहीं, पैसा भले ही चला जाए लेकिन माँ खुश हो जाएगी। और रब ने फरमाया है माँ का मकाम बहुत बुलंद है, माँ की इज्जत करो, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। आपने खिलाया माँ को और खुश रब हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, ये उस तो ना सोचे तो सूफिया ने कर दिया तो उसके लिए दुनिया छोड़नी पड़ेगी। आप दुनिया में भी रब को याद कर सकते हैं, अपने अमल में भी जो अमल करें रब को याद करें कि ये क्या ये रब खुश होगा या रब नहीं खुश होगा, इस चीज़ अमल से रब खुश होगा या रब खुश नहीं होगा। इन चीज़ों पे आप करेंगे काम तो आपका रब भी खुश होगा। आप डॉक्टर हैं, आपने देखा कि ये इलाज सस्ते में हो सकता है, लेकिन सोचा कि अपना फ़ायदा हो जाए तो इसको झूठ बोल दूँ कि बहुत बड़ा इलाज है, फिर लेकिन आपके जहन में फिर ख्याल आ गया नहीं, झूठ बोलना मेरे रब को पसंद नहीं। आपने इस पे अमल कर दिया,
रब आपका इसी में खुश हो जाएगा। तो इसलिए सूफिया करام की ये ज़िंदगी, ये ना सोचे कि सूफिया करام वो थे, उन्होंने ज़िंदगी छोड़ दी, दुनिया वालों को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया। सूफियाओं की ज़िंदगी अलग है, सूफियाओं का मकाम अलग है। बेशक सूफिया का मकाम अलग है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ उनकी तालीमात, जहाँ उन्होंने हर अमल में, हर सोच में रब को आगे रखा, वैसे हमें भी हर काम में, हर अमल में, हर सोच में, हर फिक्र में, चाहे जो हमारे अखलाक हो, चाहे हमारी ज़बान हो, चाहे हमारा अमल हो, हमारा काम हो, हमारा किरदार हो, सब में रब को याद करें। ये किरदार क्या रब पसंद करेगा? ये किरदार क्या मेरे रब को अच्छा लगेगा? ये काम क्या मेरे रब को अच्छा लगेगा? ये अमल क्या मेरे रब को अच्छा लगेगा? ये किरदार मेरे रब को अच्छा लगेगा? ये अखलाक, ये ज़बान, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मेरा जो बीवी से ताल्लुक़ है, जो मेरा बीवी से ताल्लुक़ है, क्या रब को ये ताल्लुक़ पसंद आएगा? जिस तरह मैं भाइयों से ताल्लुक़ बना रखा हूँ, क्या रब को ये ताल्लुक़ पसंद आएगा? जिस तरह मैं माँ से मिलता हूँ, जो माँ से ताल्लुक़ मैंने बनाया है, माँ से जो मेरा रिलेशन है, क्या रब इस रिलेशन में खुश हो जाएगा? जो मेरा बाप से रिलेशन है, मैं माँ से मोहब्बत करता हूँ, मेरा रब खुश हो जाएगा। तो बहुत अच्छा अमल है। लेकिन अगर आपके दिल में आ जाए नहीं, जिस तरह मैं अपनी माँ से बिहेव करता हूँ, उससे मेरा रब खुश नहीं होगा, तो सोचना कि माँ से इखलाक से अच्छे से मिलना। मेरे भाई से जिस तरह से मैं भाइयों से ताल्लुक़ बनाए रखा हूँ, मेरा रब खुश नहीं होगा। तो इस तरह जब हम सिलसिले वाले हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कि इन बुज़ुर्गों से हमारा ताल्लुक़ है, इन बुज़ुर्गों से हमारा ताल्लुक़ है, हम इन बुज़ुर्ग के सिलसिले से बैत हासिल की है, लेकिन ज़रा सोचें कि इन्होंने क्या तालीम सिखा दी, इन्होंने क्या हमें बताया है, क्या बताया है, क्या हुक्म दिया। हम कादरी तो कह रहे हैं, चिश्ती कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं जान रहे कि कादरी तो कह रहे हैं, लेकिन अब्दुल कादिर ने क्या कहा। हम चिश्ती तो खुद को कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं जान रहे कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा। हम खुद को साबरी तो कह रहे हैं, नहीं जान रहे कि साबिर कलियरी ने क्या किया और क्या कहा। हम खुद को अशरफी तो कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं जाना कि सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर क्या कह रहे हैं। तो कादरी कह रहे हैं। अब सिलसिला कादरी हज़रत गौस आज़म फरमाते हैं कि इश्क वो है, अल्लाह का इश्क वो है जो तुमको दुनिया से दूर कर दे और अल्लाह के करीब कर दे। अब इसकी मिसाल जो मैंने अभी बताई है, इसी तरह पे हज़रत गौस आज़म फरमा रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि अल्लाह का इश्क वो है जो तुमको दुनिया से दूर कर दे। यानी तुम दुनियावी फ़ायदा ना देखो चीज़ों में, बल्कि रब आखिरत का फ़ायदा देखो। ये ना देखो कि इससे मेरे माल में फ़ायदा हो जाएगा, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। वो देखोगे कि अगर माल में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क्या ये अल्लाह को खुश करेगा? क्या अल्लाह इससे राज़ी होगा? क्या अल्लाह को ये नापसंद है? इस तरह तुम रहो तो दुनिया में, लेकिन ख्याल रब का रहे। उसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हम चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या फरमाते हैं कि बंदे के दुख महसूस हो, कि किसी का दुख देखकर तुमको दुख महसूस हो, वही अल्लाह की मोहब्बत है। कि तुम बंदे की तकलीफ देख रहे हो और तुम खुश हो रहे हो, अच्छा इसके साथ अच्छा हुआ, ये हुआ, बड़ा मज़ा आया, तो ये तुम्हारी अल्लाह से मोहब्बत नहीं, ये कुर्बत नहीं, बल्कि तुम तकलीफ को देख के तकलीफ महसूस कर रहे हो कि अल्लाह इसका ये नुकसान हो गया, तुमको तकलीफ हो रही है, तुम उसके साथ खड़े हो, ये कुर्बत है। अल्लाह से मोहब्बत उसके बंदों से मोहब्बत है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि अल्लाह का आशिक वही है जो अल्लाह के बंदों से, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करे। गरीब को खिलाए, गरीब को खाना, मोहब्बत अल्लाह की, अल्लाह का आशिक है। वो लोगों की मदद करे, अल्लाह का आशिक है। लोगों से अच्छा से मिले, अल्लाह का आशिक है। लोगों से अखलाक से मिले, अल्लाह का आशिक है। लोगों की मोहब्बत करे, अल्लाह का आशिक है। लोगों की हमेशा मदद करे, उनकी बुराई ना करे, उनको जलील ना करे, उनको रुस्वा ना करे, उनको इस कोशिश में ना लगा रहे कैसे मैं इस शख्स को, इसने मुझसे दुश्मनी की, इसको मैं जलील कैसे कर दूं, इसको मैं कैसे हरा दूं, इसको कैसे मैं परेशान कर दूं। वो अल्लाह का आशिक नहीं। अल्लाह का आशिक तो वो होता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, जो सबसे मोहब्बत करे, जो सबसे मोहब्बत करेगा वही अल्लाह का आशिक है। अजीज़ों दोस्तों, सिर्फ अल्लाह की कुर्बत ये नहीं कि इबादत कर ली, अल्लाह कर लिया। अल्लाह की मोहब्बत ये है कि अल्लाह के किसी मखलूक को तकलीफ़ ना पहुँचाए। हम सूफिया कराम को बड़ी आसानी से हमने खुद के आगे आधार कार्ड पे, फेसबुक आईडी पे चिश्ती तो लिख दिया, लेकिन चिश्तियों का एक अमल हम अपने किरदारों में ना ला पाए, चिश्तियों का एक अमल खुद नहीं ला पाए। हम खुद को चिश्ती, निज़ामी, जनाब क्या क्या सिलसिले कहते हैं, लेकिन क्या हमारे दिल में अपने झांक के देखें, क्या उस सिलसिले के बुजुर्ग का कोई भी अमल हमारे किरदार में, हमारे अमल में कोई भी अमल उनसे मिलता है? तो अजीज़ों दोस्तों, हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं, इश्क
वो समंदर है, रब का इश्क वो समंदर है कि जो डूब गया उसको किनारा नहीं मिलता, क्योंकि उसका किनारा अल्लाह के नूर में घुल जाता है। ग्रामी, आज की दुनिया में हम गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं, उठते बैठते हमसे गुनाह होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। ये ना सोचे अपने दिल में कि हम गुनहगार हो गए हैं और हमें पूछेगा कौन, हमें करे क्या। सूफे कराम वो लोग हैं जिन्होंने गुनहगारों को दिल से लगाया, जिन्होंने गुनहगारों को दिल से लगाया। हज़रत मौलाना रूम का वाक़या, एक बार आप मस्जिद में बैठ के दर्स दे रहे थे तो आपकी मजलिस में एक शख्स आ गया और वो चोर था। उसने हज़रत मौलाना रूम के पास आया और चुप्पे से कुछ पैसे उठा लिया, उनकी महफिल से, उनकी मजलिस से कुछ पैसे उठा लिया। हज़रत मौलाना रूम ने देख लिया, उससे कहा कि बैठो बैठो, महफिल ख़त्म तो हो जाने दो, मजलिस ख़त्म हो जाने दो तब जाना। उस चोर को लगा कि मौलाना रूम को लग रहा है कि मैं उनका मुरीद हूँ, वो बैठ गया। महफिल ख़त्म हो गई, हज़रत मौलाना रूम ने उसको पकड़ा और बुलाया, कहा, उसका हाथ पकड़ा, कहा बेटा ये हाथ चोरी के लिए नहीं बल्कि रब से दुआ के लिए है। फिर उसके बाद उसको अपने सीने से गले से लगा लिया। वो शख्स फूट फूट के रोने लगा। हज़रत मौलाना रूम ने बैठा ला, कहा बेटा मालूम है तुम चोरी इसीलिए कर रहे हो ना कि तुम्हारे घर में रोटी नहीं है, तुम्हारे घर में कुछ खाने को नहीं है। आपने अपने एक शागिर्द को बुलाया, उससे रोटी मंगवाई, अपने हाथों से उस चोर को खाना खिलाया, अपने हाथों से उस चोर को रोटी खिलाई। फरमाया कि बेटा ये हाथ अल्लाह के लिए हैं, ये जहाँ जिस हाथ से तुमने चोरी की है उस हाथ से तुम दुआ मांगो, तेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी। वो शख्स फूट फूट के रोने लगा, कस कस के सिसकियां रह के मौलाना रूम की गोद में रोने लगा, चिल्लाने लगा। फिर उसने कहा आज के बाद मैं वादा करता हूँ कभी मैं चोरी नहीं करूंगा। ये सूफिया का बहाउद्दीन नक्शबंदी का वाकया है कि उनके दौर में एक शहजादा था, बादशाह का बेटा था, बड़ा गुनाह में मुब्तला था, हर तरह की बुराइयां उसमें थी। वो एक बार हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी की खानका में आ गया। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी ने उसको बैठा लिया। लोगों ने कहा हज़रत ये बदनाम शहजादा है, इसकी हरकतें आपको मालूम है, ये फलां गुनाह करता है, फलां गुनाह करता है, फलां गुनाह करता है, इसने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये लायक नहीं कि आपकी खानका में बैठ सके, ये लायक नहीं कि आपके लोगों में बैठ जाए। तो आपने उसके कंधे पे हाथ रखा उस शहजादे के और कहा कि ऐ लोगों, जिसका दिल गुनाह में मुब्तला होता है वो सबसे ज्यादा तैयार होता है खुदा की मोहब्बत के लिए और तौबा के लिए, वो दिल से तेज तैयार होता है। आपने उसको अपने करीब बैठाला, उसको या रहीम या रहमान को जिक्र कहा कि तुम या रहीम या रहमान पढ़ो बेटा, तुमने जो गुनाह किया है भूल जाओ, अब बस या रहीम और या रहमान करना। रब बड़ा करीम है, रब बड़ा रहीम है, तुमको माफ कर देगा, तुमको माफ कर देगा। फिर उस शख्स ने, उस शहजादे ने हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी की खानका में बैठ के जिक्र अस्कार किए, या रहमान या रहीम, और कुछ दिन में वो फकीर बन गया और ऐसा परहेजगार बना कि उनकी खानका में सबसे परहेजगार कोई मुरीद वो शहजादा था। तो हज़रत करामी ये सूफिया कराम है, सूफिया कराम है जिन्होंने गैरों से हज़रत शम तब्रेज़ हज़रत मौलाना रूम से फरमाते एक जगह कि रूम अच्छों से तो सब मोहब्बत करते हैं, मज़ा तो तब है रब के उस बंदों से मोहब्बत करो जो गुनहगार है और रब के करीब उसको ले आओ। वो हज़रत बहाउद्दीन है। ये हज़रत सूफिया कराम कभी शराबी के पास बैठ जाते, उसको करते कि तुमको इसका नशा नहीं, तुमको रब का नशा सिखाता, अल्लाह की मोहब्बत का नशा सिखाता। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसलिए आप ये ना सोचें, डिमोटिवेट ना हो कि अब मैंने गुनाह कर लिया है, अब मैं गुनहगार हो गया, मैं कैसे सुधरूंगा। घबराए ना, अल्लाह के करीब हो जाएं। अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह रहमान और रहीम है, आप अल्लाह करीब रहेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें सूफिया कराम से उनको सिर्फ फातिहा नियाज के लिए या दरगाहों पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं रखना, बल्कि इनकी तालीम, इनका किरदार, इनके अमल के अगर हम 2-3% अमल कर लेंगे तो हम सच्चे सूफिया कराम के मानने वाले हो जाएंगे और सिरातुल मुस्तकीम पर चल जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।